लोग कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस तब्दील हो गई है। मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि बाइबल मुकद्दस ने मेरी जिंदगी तब्दील कर दी है। मेरी जान को खुदा ही की आस है, मेरी निजात उसी से है, वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है। आइए नाज़रीन, हम भी हज़रत दाऊद के साथ मिलकर इस दुआ में शामिल हों, क्योंकि हमें अपने खुदा पर हमेशा तवक्कल रखना है। वही हमें हमारी तमाम मुश्किलात, मुसीबतों और बीमारियों से रिहाई बख्शता है। प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में एक बार फिर से शाइस्ता आसिफ आप सबकी खिदमत में हाजिर है और दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद। प्रोग्राम में हस्बे साबिक सबसे पहले खुदावंद की हम्द सना और प्रस्तिश। तो आइए डॉक्टर रूप जॉर्डन की खूबसूरत आवाज़ में ये खूबसूरत गीत सुने। नाचते झूमते सब हमद करो, गाते और
नाज़रीन, अभी आप खुदावन की प्रस्तिश में डॉक्टर रूप जॉर्डन से ये खूबसूरत गीत सुन रहे थे। मेरा ईमान है कि आपने इस गीत के वसीला से ज़रूर बरकत पाई है। और अभी वक्त है ड्रामा देखने का, तो आइए ये नसीहत आमोज़ ड्रामा देखें। ਅੱਬੂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਕਟੀਵੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਰ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਲੈ ਲਈ। ਮਾਰਥਾ ਲੈ ਆ ਰੋਟੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। आ गई जी, सिर्फ 2 मिनट। आज दुआ भी शकील करेगा। खुदावन तेरा जी शुक्र करते हैं, ਅਸੀਂ इस खाने में बहुत सारी बरकत पा, ਅਸੀਂ खाइए। आमीन। ਲੈ ਖਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅੱਛਾ ਮਾਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਘੱਲ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਆਵਾਂ। ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਕਾ ਲਿਆ ਕਰ। ਫਾਇਲ ਲਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਸਵੇਰ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਡਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ, ਤੂੰ ਕੋ ਨੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਲਿਆ ਦਿਓ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਕੱਲ ਲਈਆਂ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕੋ ਨਵਾਂ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਅਸਤਰ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੇਟ ਜਾਂਦੇ। हील आके ABC पढ़ा। A B C D E F G H I J K L आ जाओ। आज फिर तुसी लेट आए जे। चलो बैठो। चल शकील दोबारा पढ़ा लेना। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੜਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਟੀਚਰ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇਰੀ।
ਹੋਰ ਜੀ ਬੂਪ ਭਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ठीक है पास्टर जी बस ਸਭ ਘਰ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਹੈ? हाँ जी ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ ਯਕੂਬ, ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਹੇ हैं? खैर है पादरी साहब, स्कूलों आया बच्चों तो परेशान, घरों भी परेशान। देखो जी पादरी साहब, मैं इन्नी मेहनत करना, भाई बनना भी करना, इनके बावजूद ना मेरी रोजी च बरकत, ना मेरी घर च बरकत। मैं लोगों को देखना वो इन्नी मेहनत भी नहीं करते, इनके बावजूद उन्होंने घर भरे ही जा रहे, खुदा उन्होंने दिते ही जा रहे। ਭਾਈ ਯਕੂਬ, ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮੀ ਲੱਭ ਸਕਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਉਹਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। अच्छा आज भाई साहब फिर घर ही चलने ते दुआ कर। ਚੱਲ ਫਿਰ। ਹੋਰ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? हाँ तबीयत ठीक, खुदावंद दा बहुत शुक्र है। दुआ करिए। हाँ जी करो। कदूस रहीम जिंदा आसमानी बाप, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯਾਕੂਬ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਆਮੀਨ। ਭਾਈ ਯਾਕੂਬ, मैं तेरे लिए एक किताब लेके आया जिन्हों तू अगर पढ़ेगा तो तू बाइबल के उन्होंने भेतों तो यसू दी उन्होंने गल्लों बड़ी आसानी नाल सीख जाएगा कि असी किस तरह अपनी जिंदगी गुजारनी है। डॉक्टर मार्टिन लूथर दी यह मुख्तसर कैटेकिज्म किताब है जिहड़ी कि सानू जिंदगी के रस्ते, जिंदगी दी मुश्किलां ते जिंदगी दी परेशानियां दा आसान हल दिंदी है। इनू पढ़ना है ते अपने बच्चों को भी ये नाल पढ़ाना है ते घर च दुआ करया करो ताकि खुदा तुहानू बहुत ज़्यादा बरकतां दे नाल नवाजे। ठीक है? ठीक है। मैं हुण चलदा वां ते तुसीं हमेशा खुश ते आबाद रहो। अच्छा जी। अच्छा बुजुर्गो, आओ असी सारे अपनी अखां बंद करिए ते दुआ करिए। ऐ साडे बाप, मैं तेरा शुक्र करना वा कि तू सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ताकि तेरा कलाम पढ़िए ते इहदे मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारिए। आमीन। जी नाज़रीन, अभी आप ये नसीहत आमोज़ ड्रामा देख रहे थे। मेरा ईमान है कि इस ड्रामा के वसीला से आपने ज़रूर खुदा के कलाम को सीखा है। अभी वक्त है हमारी आज की आयत का, तो आइए केवन और उनके टीचर के पास चलते हैं जो हमें बाइबल मुकद्दस में से आज की खूबसूरत आयत सिखाएंगे। गुड मॉर्निंग केवन और नाज़रीन, केवन और मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में आदाब। केवन, पिछले हफ्ता जो आयत आपने सीखी थी क्या आपको याद है? मुझे याद चले गए। याद आ गया सर। शाबाश केवन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। वो ज़बूर 106 की पहली आयत थी। खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त काफ़ी है। बहुत खूब केवन, वेल डन। सर, आज की आयत भी बता दें? ज़रूर। आज हम मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 12वीं आयत सीखेंगे।
बस जो कुछ तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो। सर, इस आयत का मतलब ही समझा दें, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अक्सर ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम दूसरों के साथ जो मर्जी सलूक करें, लेकिन वो हमारी इज्जत करें, जो कि एक नामुमकिन बात है। जी सर, नहीं, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। बिल्कुल सही कहा केविन आपने। यही बात हमारे निजात दहिंदा ने हमें बताने के लिए इतनी खूबसूरत तालीम दी है। सर, अब मैं समझ गया हूँ। मेहरबानी से आयत को दोबारा दोहरा दें ताकि मैं अच्छे से सीख सकूँ। हाँ केविन, ज़रूर। तो आए नाज़रीन, इस आयत को हमेशा के लिए याद कर लें। मुक़द्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 12वीं आयत। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो। शुक्रिया सर। खुदावन आप सबको बरकत दे। जी नाज़रीन, अभी आप केवन और उनके टीचर से बाइबल मुकद्दस में से आज की आयत सीख रहे थे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप खुदा के कलाम को इसी तरह से रोज़ बरोज़ पढ़ें और इसमें तरक्की करते जाएं, ताकि बुरे वक्त में इब्लीस के तमाम मंसूबों को नाकाम बना सकें। और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर के मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी खुदा के कलाम को मज़ीद सीखें। तो आइए वकास पतरस के पास चलते हैं, जो हमें डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म में से कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा सिखाएंगे। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में वकास पतरस एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और उसी के जलाली नाम में आप सबको सलाम पेश करता है। और नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर हफ्ता इस एपिसोड के वसीला से खुदा के कलाम को डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म में से सीखते हैं। और इसी तरह हमारा आज का मजमून है रूहुल कुद्दस खुदा है, जिसमें हमारा आज का पहला सवाल है, रूहुल कुद्दस कौन है? और नाजरीन, इसका जवाब है रूहुल कुद्दस खुदाई सालूस के 3 अकानीम में से एक है। तो आए इस हकीकत को जानने के लिए बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं। बाब 19वीं आयत, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटी और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। दूसरा कुरिन्थियों 13 बाब 14वीं आयत, खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूहुल कुद्दस की शराकत तुम सबके साथ होती रहे। मत्ती 3 बाब 16वीं और 17 आयत, यीशु के बपतिस्मा के वक्त तसलीस खुदा के तीनों अकनूम मौजूद थे। जी नाजरीन, अभी हम खुदा के कलाम को सीख रहे थे कि रूहुल कुद्दस खुदाई सालूस के 3 अकानीम में से एक है। और अभी हम सीखेंगे मैं क्यों ईमान रखता हूँ कि रूहुल कुद्दस हकीकी खुदा है। और नाजरीन, इसका जवाब है मैं ईमान रखता हूँ कि रूहुल कुद्दस हकीकी खुदा है, क्योंकि नंबर 1 बाइबल मुकद्दस उसे खुदा कहती है। नंबर 2 क्योंकि वो ऐसी सिफात रखता है जो सिर्फ खुदा की है। और नंबर 3 क्योंकि वो ऐसा काम करता है जो सिर्फ खुदा कर सकता है। तो नाजरीन, आए इस हकीकत को जानने के लिए बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं। अमाल 5वां बाब 3 और 4 आयत, पतरस ने कहा, ए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्दस से झूठ बोले? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। पहला कुरिन्थियों 12वां बाब 6 और 11वीं आयत, मगर खुदा एक ही है जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है, ये सब तासीरें वही एक रूह करता है। पहला कुरिन्थियों 3 बाब 16वीं आयत, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? जी नाजरीन, अभी हम खुदा के कलाम को सीख रहे थे कि मैं इसलिए ईमान रखता हूँ कि रूहुल कुद्दस हकीकी खुदा है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस उसे खुदा कहती है और वो ऐसी सिफात रखता है जो सिर्फ खुदा की सिफात हैं, और वो ऐसे काम करता है जो सिर्फ खुदा ही कर सकता है। और नाजरीन, अभी हम सीखेंगे पाक रूह के काम को क्या कहा जाता है। और नाजरीन, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इसका जवाब है पाक रूह के काम को तकदीस कहा जाता है। तो आए बाइबल मुकद्दस की रोशनी में इस हकीकत को जानते हैं। दूसरा थस्सलुनीकियों 2 बाब 13वीं आयत, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्तिदा ही से इसलिए चुन लिया था कि रूह के ज़रिए से पाकीज़ा बनकर और हक पर ईमान लाकर निजात पाओ। पहला पतरस 2 बाब 9वीं और 11वीं आयत,
लेकिन तुम एक बर्गज़ीदा नस्ल, शाही काहिनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज़ करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। पहला करंथियों 6 बाब 11वीं आयत। तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा की रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। जी नाज़रीन, अभी हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को सीख रहे थे और मेरा ईमान है कि हम सब ने इस कलाम के वसीला से ढेरों बरकत हासिल की हैं। और अभी विकास पतरस आप सबसे इजाज़त चाहता है। अगले हफ्ता फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर अशरफ जान है। पाकिस्तान बनने से कबल मेरे दादा सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन खुदा ने उन्हें अपनी रोशनी बख्शी और अपने फजल की बदौलत मसीही ईमान जैसी दौलत में शामिल किया और यूँ मैं मसीही घराने में पैदा हुआ। लेकिन मेरे वालिदैन रोमन कैथलिक मसीही थे। इस तरह से मैं भी रोमन कैथलिक मैंने भी तालीम पाई और हमेशा रोमन कैथलिक मसीह होने पर बड़ा फ़ख्र महसूस किया। जब मैं अभी जवान ही था तो एक खुदा के बंदा ने मुझसे सवाल किया, क्या आप मसीही हैं? मैंने कहा हाँ, मैं बचपन ही से पैदाइशी तौर पर मसीही हूँ। उसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। शख्सी तौर पर आपने कब मसीह को कबूल किया? मैंने सोचा यह कैसा फजूल सवाल है। कुछ दिन बाद दौरान बाइबल स्टडी खुदा ने अपने कलाम मुक़द्दस हबक्कूक नबी का सहीफ़ा और उसका 2 बाब और उसकी 4थी आयत के ज़रिया मुझ पर ज़ाहिर किया कि मुतकब्बर आदमी का दिल रास्त नहीं, लेकिन रास्तबाज ईमान से ज़िंदा रहेगा। कलाम की इस आयत ने मुझ पर ज़ाहिर किया कि मैं बहुत मुतकब्बर हूँ। अपने हसब नसब पर, अपनी कौम भट्टी होने पर, रोमन कैथलिक होने पर, मुक़द्दसा मरियम पर, अपनी ज़िंदगी, अपने अच्छे कामों पर। लेकिन कलाम की इस रोशनी ने मुझे अपने आप को पहचानने में मदद की और यूँ 20 अगस्त 1986 को मैंने हकीकी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को पहचाना और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया। तब से आज के दिन तक मैं समझ गया हूँ कि मैं क्यों मसीही हूँ। तकरीबन 32 साल से मैं खुदावंद के साथ रफ़ाकत में हूँ। इन 32 सालों में मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे अंजील की मनादी और खुशखबरी के लिए कसरत से इस्तेमाल किया। उसने मुझे जिस मकसद के लिए चुना उसी मकसद को पूरा करने की कोशिश में लगा हूँ। और कलाम मुक़द्दस की ये आयत कि मैंने नहीं बल्कि तूने मुझे चुन लिया मेरी ज़िंदगी पर पूरी उतरती है। उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा और ना छोड़ेगा, क्योंकि मैंने अपने कमज़ोर हाथों को उसके मजबूत हाथों में दे दिया है। खुदा ने इस बड़ी खिदमत में मेरा साथ देने के लिए ईमानदार नेक बीवी मुझे तोहफ़ा में अता की, जिसने हर मुश्किल में मेरी हौसला अफजाई और मदद की। खुदा ने मुझे 4 खूबसूरत और ताबेदार बच्चे अता किए। खुदा की इन बेशुमार बरकतों और रहमतों के लिए मैं उसका तहे दिल से मशकूर हूँ और अपने मसीही होने पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। नाज़रीन, अभी आप हमारा ये खूबसूरत प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी देख रहे थे। मेरा ईमान है कि इस प्रोग्राम के तमाम सेगमेंट्स के वसीला से आपने बहुत सारी बरकत को हासिल किया है। प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी कीमती आरा की हमें बेहद ज़रूरत है। प्रोग्राम की पसंदीदगी, मशवरा जात और दुआया दरखास्तों के लिए आप हमें इस पता पर राब्ता कर सकते हैं। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च, 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल।
कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0304 450 4787। अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आपको बरकत दे।